बन रही है, edits इतने बन रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे comments, messages आ रहे हैं. So what else could an artist ask for? और अच्छा काम को अप्रिसिएशन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है. साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? वो आइस ब्रेकिंग किसने की या वो नेचुरली दोनों की तरफ से हो गया स्पॉन्टेनियसली? वो हमारे घरों के एड्रेस ने की. When we reached the airport is when we realized कि यार हम तो same building में रहते हैं. Live audience के सामने shoot करना because we shot at actual localities, the actual local market. Yeah. So that was a totally different experience. कोई picture लेने आया था and I was like, and Aditya sir had the director basically he had called for action. तो हमारा ध्यान उधर रहता है तो हम लोग मैं उनको भी हटाने लग गया. जिन्हें आप जानते भी नहीं हो लेकिन वो आपको जानते हैं. They've just seen you on screen. Yeah. They don't even know you as a person, but the kind of love they show is so overwhelming कि आपको लगता है यार मैंने क्या ही कुछ अच्छा किया होगा that I deserve this. And suddenly this entire troop of monkeys comes marching over us and towards us, I mean. And Shantanu was all chill. मैं थोड़ा nervous हो गया. I was like, oh shit, what's happening? And Shantanu आराम से नीचे बैठ के उनका वीडियो ले रहा है. मैंने बोला okay, they seem friendly, let me go and say hi. मैं गई, मैंने हाय बोला, the monkey snapped on me. आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारे जो दोनों मेहमान हैं वो बड़े खास हैं, बड़े स्पेशल हैं क्योंकि वो लव्ड बाय वन एंड ऑल है. मतलब यार वो एक्टिंग करते हैं, डांस करते हैं या सोशल मीडिया में कुछ भी पोस्ट करते हैं. लव देम अ लॉट. और अब ये दोनों जो हैं एक साथ पहली बार आए हैं. इनका म्यूजिक वीडियो टूट गया लेकर. तो आप सोच सकते हैं कि लव, एडुलेशन, अप्रिसिएशन भी दो गुना होने वाली है. मैं बात कर रही हूँ सबके चहेते अशनूर कौर और साथ ही साथ शांतनु माहेश्वरी की. तो सबसे पहले बहुत सारी बातें तो हम करेंगे, बट अ वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म. थैंक यू सो मच. एंड इतना अच्छा अपना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया. थैंक यू सो मच. यार आप लोग इतने प्यारे हो ना तो इंट्रोडक्शन भी प्यारा ही होना चाहिए. वेल डिजर्विंग टू बोथ योर वैल्यूज. अच्छा, गाना जो है बड़ा ही प्यारा बना है, व्यूज बहुत सारे मिल रहे हैं, कमेंट्स बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं. तो कैसा फील हो रहा है आफ्टर द रिलीज? Feels great, yeah. I mean, it's day 3, but we're still trending on YouTube. So much love is pouring in. So many people are still streaming our song. Reels itni ban rahi hai, edits itne ban rahe, itne pyare pyare comments, messages aa rahe hain. So what else could an artist ask for? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है. जैसा आपने कहा कि और अच्छा काम को अप्रिसिएशन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है. देखा, मैं अपनी लाल नहीं कर रहा हूँ बट मतलब सॉन्ग बोल रहा हूँ. सॉन्ग अच्छा है तो वैसे नहीं एक्चुअली पता है वो सॉन्ग जो है टोटल पैकेज है. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाया अच्छा है या उसका पिक्चराइजेशन अच्छा है. मतलब राइट फ्रॉम एक्टिंग टू द लिरिक्स, मतलब जो लिरिक्स हैं आप दोनों की एक्टिंग ने उनको फीलिंग दे दी है. Yes, yeah, thank you. Okay, but tell me, how did the song happen to both of you? एक एक करके आप बताओ. How did this whole music video come to you? So starting with you, Ashnoor. So I got a call from Saregama and Aditya sir was online as well. And I first actually heard the concept, the storyline, and then I heard the song. So I guess that was even more impactful for me because I could relate every lyrics, every word of the song to the kind of conceptualization they had thought of. So that happened, and before we say yes to any music album, there are 2-3 criteria that we look up to, and all of them were a tick in this because there was the Saregama label. Steven has sung it, composed by Gaurav sir. Aditya sir is going to be directing it. There was Shantanu. The concept and storyline was so beautiful. The song was so nice and catchy and had such a deep meaning to it that I just couldn't find a reason to say no. Everything was a yes to me. What about you, Shantanu? I mean, जब मैंने सुना गाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा है. And I was like कि चलो भाई, ये तो सबसे पहली मेरी क्राइटेरिया रहती है कि अच्छा गाना हो तो मजा भी आता है करने में काम. in terms of किसके साथ कर रहे हो, टीम है, वो सेकेंडरी आती है. बट फॉर मी द सॉन्ग नीड्स टू बी गुड. सो यस, व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग बहुत अच्छा लगा मुझे. एंड आई फेल्ट आई कुड कनेक्ट विद द लिरिक्स. सो आई फेल्ट लाइक डेफिनेटली अब आगे बात प्रोसीड की जाए, क्या है क्या नहीं. एंड देन या मतलब अशनूर थी तो बाय डिफॉल्ट मतलब सोने में सुहागा हो. अच्छा, पहली बार आप दोनों ने साथ में काम किया है, राइट? बट द केमिस्ट्री हैज दैट स्पार्क. बड़े प्यारे लग रहे हो साथ में आप. तो वो
साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? वो आइस ब्रेकिंग किसने की या वो नेचुरली दोनों की तरफ से हो गया स्पॉन्टेनियसली? वो हमारे घरों के एड्रेस ने की। मतलब when we reached the airport is when we realized कि अरे हम तो सेम बिल्डिंग में रहते हैं। अच्छा, And then the chemistry just kind of we हाँ। just चल रहा। So फिर मतलब ऐसा था कि ओके बाय डिफॉल्ट ऐसा लगा हम एक दूसरे को जानते हैं। Yeah. okay. So I think that was a big icebreaker, and otherwise I feel Ashnoor is so good with her craft, so I think उसने जो किया उसके तरफ से बहुत naturally आया, the way she performed, and all I had to do was just react to what she was doing, and by default जो शॉट था वो मिल गया। करेक्ट। अच्छा, मुझे ना एक चीज जो पूरा म्यूजिक वीडियो है उसमें बड़ी प्यारी लगी कि जैसे बहुत ज्यादा डायलॉग्स नहीं है, ऑब्वियसली इट्स लाइक अ सॉन्ग जिसके थ्रू पूरी स्टोरी आप बता रहे हो, बट जो इशारों में आप दोनों ने बात की है और जो बात आपके इशारों से हमारे दिल तक पहुंची, मेरे दिल तक तो डेफिनेटली पहुंची, दैट वाज सो ब्यूटीफुली डन। Thank you so much. Thank you. Which was your favorite moment? यार मेरा ना वो जब आप वो दिए चल रहे हैं एंड आप पानी से बाहर आते हो, मतलब वो कुछ नहीं कह के इतना कुछ कह गए पॉन्ड से, सो दैट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट। थैंक यू, दैट्स माय फेवरेट एज वेल। और मुझे ऐसा लगा उस वक्त, ऐसा लगा जितने लोगों ने प्यार किया है, ऑफ कोर्स इनिशियली सब अपना प्यार छुपाते हैं ना अपने घर वालों से, तो ये जो इशारों वाला प्यार था ना, ये मुझे लगा सारे लवर्स कहेंगे अरे यार ये तो मैंने भी किया है। Right. So Okay. yeah, I mean, so happy कि आपको अच्छा लगा वो चीज। या सो आपके केमिस्ट्री की तो बात हो गई, एंड यू सेड कि घर के जो पते हैं उन्होंने वो इंस्टेंट केमिस्ट्री बना दी, ऑफ कोर्स देन बोथ ऑफ यू आर सच गुड परफॉर्मर्स एंड आर्टिस्ट, तो और भी काम आसान हुआ होगा। शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा जहां लोकेशंस में आपने शूट किया? So we actually shot at live locations. We shot in Haridwar and Rishikesh, and उन दोनों cities की best locations में हमने shoot किया. We shot at Lakshman Jhula. We shot near Ganga Ji. So it was such a beautiful experience. Such surreal, pious, pure vibes from the two cities that we shot in, and I mean, of course, live audience के सामने shoot करना, because we shot at actual localities, the actual local markets. Yeah. So that was a totally different experience. Shantanu के साथ कुछ हुआ भी था take में, there was somebody who came to take pictures. What happened? He'll tell me better. नहीं मतलब कोई picture लेने आया था, and I was like, and Aditya sir had, the director, basically he had called for action. तो हमारा ध्यान उधर रहता है, तो हम लोग बोले, मैं उनको भी हटाने लग गया। वो बेचारी डर गई लड़की, तो I came back and like हाँ आपके साथ फोटो खींचूंगा, just that वो action हो गया था, so it's hard to manage a busy street, so वैसा तो it was super fun कि लोगों के बीच में शूट करना, और वहाँ के and crowd just खुलना शुरू किया गया था because कोविड के बीच में हो रहा था ये सब, so like मजा आया। करेक्ट। अच्छा, जनरली जैसे मुंबई में रहते हो ना, तो यहाँ के जो लोग हैं वो इतने स्टार्टेड नहीं है, बिकॉज उनके लिए बड़ी आम सी बात है, लेकिन जब आप 2 tier 3 tier जगहों पे शूट करते हो, जैसे आप लोगों ने शूट किया, जहां पर पीपल सी अरे ये शांतनु है, अरे अश्नूर है, सो हाउ डज इट फील गेटिंग ऑल दैट काइंड ऑफ अटेंशन एंड लव फ्रॉम पीपल हु हैव सीन योर वर्क? ऑब्वियसली बहुत अच्छी फीलिंग है, मतलब करते हैं इसीलिए काम हम लोग, ताकि लोगों को एंटरटेन कर सके, लोगों तक पहुंच सके, दिलों को छू सके, सो दैट्स द होल आइडिया। एंड जब ऐसा होता है तो बहुत अच्छा भी लगता है कि अप्रिशिएट करें, रिकॉग्निशन मिल रही है काम को। सो वैसे ही वहां पर भी जब हुआ तो अच्छा ही लगा हम लोगों को। seeing the response कि कोई जिन्हें आप जानते भी नहीं हो, लेकिन वो आपको जानते हैं, they've just seen you on screen, they don't even know you as a person, but the kind of love they show is so overwhelming कि आपको लगता है यार मैंने क्या ही कुछ अच्छा किया होगा that I deserve this. So that's definitely a very overwhelming feeling. And then कुछ वो चीजें बताते हैं, जैसे लाइक मतलब आपने कुछ कोई एक सीन में ये किया था, वो किया था, वो मैं अपने लाइफ से बहुत जोड़ सकता हूँ, ये होता है, so that's sweet to hear those stories as well. करेक्ट, आई एम प्रीटी श्योर। लेकिन अश्नूर, कुछ और भी शूट के दौरान हुआ था ना जो आप थोड़ा सा शायद नहीं शेयर कर रहे हो हमारे साथ? कोई एक्सपीरियंस हुआ था ना कुछ मंकीज वाला? that was a very scary experience यार। शांतनु के लिए तो बहुत चिल था,
So what happened is we were on the Lakshman Jhula, right in the center. आसपास कोई नहीं था क्योंकि हमें white shot लेना था, तो टीम सारी एक साइड थी. And suddenly this entire troop of monkeys comes marching over us and towards us, I mean. And Shantanu was all chill. मैं थोड़ा nervous हो गया. I was like, oh shit, what's happening? And Shantanu आराम से नीचे बैठ के उनका वीडियो ले रहा है. मैंने बोला okay, they seem friendly, let me go and say hi. तो मैं गई, मैंने hi बोला, the monkey snapped on me. And I was like, Shantanu, तुम मेरे सामने आओ, hiding behind you. मैं तो पाँव छूने के लिए नीचे झुका था ये. अच्छा, okay. इसको लगा कि मैं वीडियो ले रहा हूँ, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बस सुपर फन, बट हाँ वो अलग एक्सपीरियंस था. वो लक्ष्मण झूला में हम दो अकेले, तेज हवाएं चल रही है और बंदरों के बीच में हम मैं तुम वो बंदर यस, बंदरों का झुंड एक्चुअली. या ओके, आई थिंक थोड़े समय के लिए तो स्कैरी हुआ ही होगा ना, बिकॉज अनप्रेडिक्टेबल है कि वो क्या करेंगे, कैसे. अच्छा, मेरे लिए बहुत. आई थिंक इट वाज देयर पाथ. एक टाइमिंग होता है, शायद वो जाते होंगे, हम लोगों को पता नहीं था. सो इट वाज लाइक हम लोग सब रेडी है एंड गाइस एक्शन. एक बंदर, दो बंदर, तीन बंदर, ऐसे झुंड का पूरा झुंड आ गया. एंड देन दे एक्चुअली प्रॉपर्ली क्रॉस्ड द ब्रिज, वॉकिंग. ऐसा नहीं कोई झूल के जा रहे हैं, प्रॉपर एकदम पता है उनको पाथ अपना क्या है क्या नहीं. सो आई थिंक या ओके. अच्छा, काम की बात करें, सो योर वर्क हैज बीन स्प्रेड अक्रॉस अ लॉट ऑफ मीडियम्स. मतलब टीवी भी किया है आपने, फिल्म्स भी दोनों ने की हैं, म्यूजिक वीडियो भी कर रहे हैं. सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है, या सबसे ज्यादा मजा किस में आता है, और यू फील कि काम तो काम है, प्लेटफॉर्म डजंट मैटर? काम करने में मजा आता है. Yeah, right. Correct. I mean, whatever challenges you as an actor in the medium doesn't really matter. You know, if you're enjoying your work, if you're passionate towards it, it's the work that you enjoy. अगर हाँ बोल दिया तो उसके बाद फिर काम करने में बहुत मजा आता है. ऑब्वियसली अगर टीम हो जाए अच्छी तो और भी ज्यादा मजा आता है. देन स्टोरी तो अच्छी होगी तभी आपने सिलेक्ट किया होगा उसको. सो आई मीन, मतलब सारे टिक पॉइंट्स ऑलरेडी ऑन पेपर तो चेक कर ही लेते हो, एंड देन यू जस्ट एंजॉय द प्रोसेस. आई थिंक मीडियम इज जस्ट जो है वो है, यू न्यू अबाउट इट. ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता था या क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है. सो यू डील विद इट एंड यू एंजॉय. एंड कुछ ये नहीं कि टीवी में काम करना इजी है, इधर काम करना हार्ड है. बट या मतलब काम तो काम है, आपको एक्सप्रेशन तो देने ही है, इधर भी देने उधर भी देने, इमोट तो करना ही. सो या करेक्ट. बट यू नो, एक चैलेंज बीइंग अ सेलिब्रिटी वो ये है कि आपके ऊपर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहती है, क्योंकि आप हमेशा पब्लिक आई में रहते हो. तो जैसे आपने कहा, लोगों ने कहा कि आपका ये सीन मैंने अपनी लाइफ से रिलेट किया एक्सेट्रा. सो वो एक रहता है कि यार यू ऑलवेज हैव टू बी प्रिम एंड प्रॉपर, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं. नाउ हाउ डू बोथ ऑफ यू मैनेज दैट स्टारडम? क्योंकि यू नो, अश्नूर आपकी बात करें, फ्रॉम बीइंग अ वेरी क्यूट चाइल्ड आर्टिस्ट टू दिस talented young woman you have, you know, groomed yourself to be. आपकी बात करें शांतनु, एक्टर, डांसर, न्यू फाउंड रिकग्निशन विद गंगूबाई. तो हाउ आर यू बोथ? यू आर यंग, राइट? ऐसा नहीं कि बड़े आप एक्सपीरियंस के बाद 50-60 साल बाद बैठ के हम बात कर रहे हैं. हाउ आर यू गाइस मैनेजिंग इट एट अ यंग एज? आई मीन, गलती हम भी करते हैं, फिर सुधरते हैं, उससे सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. सो दैट्स द प्रोसेस प्रीटी मच. दैट इज व्हाट इट इज. आफ्टर अ पॉइंट यू अंडरस्टैंड हाउ यू आर सपोज्ड टू कैरी योरसेल्फ, एंड आपको अपने आप थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, क्या बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए. So those are the things that you learn while being part of the system, I'll say. And वो सिखा देता है, समय और सिचुएशन आपको सिखा देती है कि कैसे करना है क्या नहीं करना है. And obviously you have your team to help you out who are professional about things, and they know, they have been there, so they share their experiences, and वैसे करके हो जाता है. Plus touched me right from my childhood, like since the day I started to, you can say till date, mom has always been there with me on my shoots. So she's been there to guide me and everything. अभी थोड़ा थोड़ा छोड़ना मुझे शुरू किया है कि you know, now you're 18, you've become an adult, you go yourself and stuff like that. I've given enough. So I mean, yeah, I mean the grooming stage, she's been there with me, and I guess now I have such a wonderful, again, you know, that you have your teams, you have people who guide you through the process professionally. So बहुत help हो जाती है उससे. And it's always this: make a mistake, learn from it while being in the limelight, and then maybe just do better than what you did last time. करेक्ट. एंड द गुड पार्ट इज, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, एवरीथिंग स्पेशली द बोथ ऑफ यू डू, आपके फैंस उसे बहुत पसंद करते हैं. एंड आई थिंक
रीजन मुझे ये लगता है ना, टॉकिंग टू द टू ऑफ यू, कि आप शायद बहुत दिल से करते हो जो भी करते हो ना, मतलब वो फसाड नहीं है कि सिर्फ कैमरे के लिए कर रहे हैं या फैंस को दिखाने के लिए कर रहे हैं. व्हाट यू डू इज विद टोटल जेन्युइननेस. दैट्स व्हाट आई फेल्ट. Yes. ऐसे हम भी यही फील करते हैं. So happy है वहाँ तक पहुँचता है. Not beating our own drums now. Okay, लेकिन अब चलो बकेट लिस्ट. अच्छा, बकेट लिस्ट की बात करते हैं. हर आर्टिस्ट की एक बकेट लिस्ट होती है जिसमें सर्टन प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं, कोई रोल्स होते हैं जो इनके दिल के बहुत करीब है, या यार एक बार लाइफ में ऐसा रोल मिल जाए. तो दोनों से पूछूंगी, स्टार्टिंग विद यू अशनूर. किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो टॉप 5 या टॉप 3 अगर आप बताओ, दैट यू रियली 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 वांट टू डू? I would really want to do an action-based film where I can do action myself. I really want to work with Sanjay Leela Bhansali. That's in my bucket list. Newfound. I've worked with 2 directors already who were in my bucket. Okay. Okay. हो गया 5. हो गया. 4 बना. अच्छा 5 हो गए. अशनूर का मैं स्टाइल पकड़ूंगा. She said action genre. I say action, comedy, thrill, dance. I think I dance we've already done. And rom-coms. Acha, romance we've done. Nahi done dance and romance. Rom-coms. Okay, yeah. So I would love to do सारे genres करने हैं. And yes, बिल्कुल. अभी तो आए. So yes, I want to explore everything. Yeah. चलो, on that note, I hope the universe is हमारा hearing you network का right lag now. है. हाँ, yes. Yes, so I was saying कि I really hope कि अभी दोनों ने जो अपनी bucket list की बातें शेयर करी, the universe is hearing you, उसको वो resonate करे, आपके लिए उसको achievable बनाए, और ढेर सारा काम आप दोनों करें और हमको ऐसे ही entertain करते रहे. So wishing you both lot of love and lot of luck, and thank you so much for your time.